इसी तरह घूमने वाला है मन, वो फीलिंग देता है आत्मा। इट्स ओके। घूमने वाला है मन, वो बोलता है आत्मा घूम रहा है। शाश्वत है आत्मा, मन बोलता है मैं शाश्वत हूँ। ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಕಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ್ದು? ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ, ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಾಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಆತ್ಮ ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಾಡ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತ, ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ। ये बार बार हमको याद करना है, नहीं तो क्या हो रहा है, मन का चक्कर में हम डूब जाते हैं। समझ गए? किसको समझ में आया? मन आत्मा से सब कुछ लेता है और बोलता है मैं करता हूँ, खुद आत्मा बन जाता है। यही प्रॉब्लम है। बार बार मन का ये खेल समझ में आ गया तो आप साक्षी बनते हैं। अभिषेक अंडरस्टूड? समझ गए? Is it clear? The mind borrows the properties from self and plays as if he is the pseudo self. Okay. The self is, Atma is eternal. Mind is temporary, but mind appears to be as if it's permanent. Atma doesn't move, mind moves. It gives a feeling that as if I am moving. Atma neither comes nor goes. फिर भी mind says, because of mind it feels as if I have come and I have gone. आत्मा मरता नहीं, मन ये भावना देता है कि आत्मा मर रहा है। आत्मा एक शरीर से और एक शरीर नहीं जाता है, मन ये भावना देता है कि आत्मा एक शरीर से और शरीर चला गया। इतना चक्कर चलाता है मन। उसको देखो, देखने से आत्मा उसको देखने वाला, मन को देखने वाला है, साक्षी है। सो साक्षी बनो। जब साक्षी बनते हैं तो मुक्त बनते हैं। वो सारे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसके लिए, साक्षी बनने के लिए। हम जागते हैं, नಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ, शरीर बರ್ತದೆ। हम जागते हैं, इस शरीर आ गया और दुनिया दिखाई देता है। और स्वप्न, नींद में जाते हैं, स्वप्न आता है, स्वप्न में तो और एक दुनिया दिखाई देता है और एक शरीर है। और गाढ़ नींद आता है तो शरीर नहीं है। रोज आप 3 बार शरीर चेंज करते हैं। कई बार तो एक सपने में चार बार शरीर चेंज करते हैं, जैसा आप ड्रेस चेंज करते हैं ना। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಈ ಶರೀರ ಬಂತು, ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತು, ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಕನಸಲ್ಲಿ। ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಶರೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ। गाढ़ निद्रेली शरीर इल्ला, डीप स्लीप में शरीर नहीं है। रोज इतने बार आप शरीर बदलाव करते हैं, फिर भी समझते हैं कि आप शरीर हैं। ऐसा कैसे होगा? ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶರೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? कैसे सोचते हैं कि आप शरीर हैं? आप तो शरीर धारण करने वाला है, वो है आत्मा। ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಶರೀರ? ಈಗ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ, ಹಾಗೆ ಸೀರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ, ಗಾಢದಿಂದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ತೆಗೆದು ಮೂಲಗಿಟ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆದರೂ ಶರೀರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು? फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं। कैसे? समझ गए? सो क्यों फीलिंग आता है कि हम शरीर है? आई एम द बॉडी, फीलिंग कैसे आता है? Mind says that mind says that I'm this body. हाँ, लेकिन तो बॉडी तो एटलीस्ट couple of times you change the body every day, isn't it? Waking state this body, dreaming state another body, deep sleep state no body.
But then the essential at a grosser form, the body remains same. Probably there is a every second there is a body change. But then what is noticeable to the eyes is this, and it's all happening in this as a part of this body. Whatever change is also happening as a part of this body. So it's not something which is happening outside, outside the body. It's all happening in the body. So- the changes are happening. Face is changing. So, Height is changing. So- Everything is changing. But then there is a center around which it is changing. So that's why there is a feeling. So that's why I'm this body. who is this body? You to change the body. You change the body 3 times, 4 But- times a day. But then the body change is very minimal. It's actually In deep sleep, you have a different body. In dream sleep, you have a different body. dream sleep is not real. It is Dream real. not real. It is real. When you are dreaming, it's real, no? When When are you're dreaming, एक टाइगर आ गया तो आप भागते नहीं? लड़की आई तो बात नहीं For a करते? dream time, it's real, but you realize that it was unreal when you wake up. हाँ. But waking state also could be a dream because it's in waking state itself you feel the dream. Whenever you're in a state, you feel that is real. Maybe when I actually wake up from this larger dream, if there is this any such, I will realize that this was a dream. But unless and until the body wakes up from this state and realizes, Who has to wake up from the state? mind has to realize that this. हाँ. and So I'm pointing out to the mind that you are changing the body couple of times a day. Still you claim to be same one body. But mind has to accept, because there is a very strong notion that because what is visible to the eyes and what mind recognizes is that it is the same body. Same body. Mind has to accept and realize this fact, and it's not trivial. So, आपको समझ गया? आप शरीर तो बदलते रहते हैं, जैसे कपड़ा बदलते हैं शरीर बदलते हैं, मरने के बाद नहीं, जिंदा होने की जिंदा रहती समझिए इटसेल्फ अब तो शरीर बदलते रहते हैं। सपने में तो 2-4 शरीर ले लिया, कई बार भोपाल गए, कई बार दिल्ली गए और कुछ शरीर बदलते रहे, शरीर तो बदलते रहे आपने, फिर भी आप समझते हैं कि ये शरीर आप हैं, कैसे? व्हाट में? हाँ हाँ मन रियलाइज करता है कि हम शरीर हैं। हाँ आत्मा भी हमें है, शरीर भी। हाँ So how do you think that you are the body? Still now we have not thought that. अर्थ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ಗ ಮಗ हां दिवसाक 4 वेळा शरीर चेंज करताची विंगडे शरीर घालून घेताची त्याला आम्ही शरीर कशें जाता हे देह कशें जाता देह तट्टी रायो बॉम्बे Then I have been nothing now, so that fear. So I have to grab hold of something. To experience and grab hold of my body. समझ गए आप? सो शरीर तो आप नहीं है, मन तो हर क्षण बदलता है, बुद्धि तो क्षण क्षण बदलता है। सो आपके अंदर कुछ तो जो बदलता नहीं है तो है ना, उसको बोलते हैं आत्मा। वो बदलता नहीं, इसी के लिए आप ये शरीर यहाँ जा सकता है, वहाँ सकता है, आ सकता है, ये सब होता है, क्योंकि जिसके अंदर जो बदलता है उसके अंदर जो नहीं बदलता है वो है। ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿರೋದು ಏನೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ದಿರ ಆಗಲ್ಲ ಅದು। ಲೈಕ್ ಎ व्हील ऑफ द कार ना, वो सेंटर व्हील नहीं है तो वो घूमता नहीं है, ऐसा हो रहा है। फिर भी आप समझते हैं कि आप शरीर है, बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं, आत्मा सिर्फ शांत स्वभाव से आनंद से रहता है। फिर भी आप बोलते हैं आप मैं मन बोलता है मैं आत्मा के जगह लेके मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ बोलते हैं। सो कितना झूठ बोल रहे हैं आप? आत्मा नहीं खा रही है, मन नहीं खा रहा है। हाँ? आत्मा नहीं खा रही है, आत्मा तो साक्षी है। साक्षी है। तो कौन खा रहा है? मन खा रहा है। मन बोलता है आत्मा खा रही है, और वो करता है शरीर के वजह से खाता है, एंजॉय करता है। उसी है दूसरा बर्ड, सेकेंड बर्ड, जीवात्मा।
बोलिए आपके आप आत्मा के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? क्या सोचना जी? हाँ, आत्मा को रंग नहीं है, जगह नहीं है, सारे जगह है, शांत है, आनंद स्वरूप है, दिखाई नहीं देता, उसके वजह से सब काम चलते हैं। वो सूरज में है, चंद्रमा में है, मेरे में है, अंदर है, आपके अंदर है, सब जगह है। जब आप आत्मा को गलत समझते हैं, जो मन गलत समझता है, उसी की वजह से संसार बंधन मिलता है। आत्मा तप्पाಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಸಿಗೋದು। समझिए? ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. मैं कौन हूँ? तो उत्तर देता कौन? मैं कौन हूँ प्रश्न पूछा तो उत्तर देने वाला कौन है? वो भी मन है। आत्मा तो छुप के बैठा है। चुप के बैठे बहुत काम कराता है। मन कुछ नहीं करने के बिना वो बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ये सब बोलता है। सो बोलिए अभी प्रश्न क्या है? आत्मा और साक्षी में फर्क क्या है? आत्मा जब इस शरीर मन बुद्धि में जो क्या हो रहा है वो देखता है तो साक्षी बनता है। देखता है ये तो काम। सेम है, हाँ, एक ही साक्षी है, एक ही है। जब नहीं देखता है तो अपने आप रहता है बस। भगवान आपके अंदर क्या हो रहा है उसको देख रहा है, उसको बोलते हैं साक्षी। काम तो कुछ नहीं करता, जस्ट देखता है, सिर्फ देखता है। ऐसे बोल के क्या कर रहा है वो देखता है। उसको साक्षी। वो एसोसिएट हो जाता है हम्म, तो साक्षी without looking means without seeing, then it associates and starts thinking that I am doing that also is superimposition of mind. mind. माइंड जो माइंड करता है साक्षी एक्सेप्ट करता है बस। That's what existence is. Existence. So when Sakshi separated, that means who realizes that? The mind. Then Sakshi understands. Ultimately, Sakshi is taking the input from the mind. Mind is saying, I am the body and I am the mind. So Sakshi is saying, hello, chal raha hai. So when the mind, the wisdom dawns on the mind, then Sakshi says, okay, ठीक है, ये चल रहा है. The Sakshi and mind appear to be as if one together. When the understanding dawns on the mind, Sakshi is free. That the body drops. This thing, the association goes. Sakshi feels associated with the body and mind. Mind overtakes the position of Sakshi and says, I am this thing. So that union, no? That feeling of identification, that drops. So when we start being like Sakshi and not acting from the mind, so then the identification stops. So अब बताइए, एनी क्वेश्चन आ रहे? आत्मज्ञान आ गया? नहीं आया? सो नहीं आने के लिए क्वेश्चन तो होना चाहिए कुछ, वो बताइए। प्रभु जी, अगर ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर एक आत्मा का घर है, मतलब आत्मा इसके अंदर है, आत्मा इसके अंदर है, बाहर भी है। और हाँ वही मैं पूछने वाली हूँ कि उसको तो ये जगह भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर्टिकुलर रहे। हाँ वो मरती भी वो है नहीं, हाँ वो भी बन जाएगा। हाँ। तो फिर इसका ये पूरा रोल क्या है? किसका रोल के बारे में बता रहे हो? खाना, मन, बुद्धि, ये सब होना। किसका रोल के बारे में जब बता रहे हो? आत्मा को मतलब जगह भी नहीं चाहिए रहने का, कुछ नहीं चाहिए, तो शरीर क्यों चाहिए? आत्मा को शरीर नहीं चाहिए।
ये मन आत्मा की जगह लेकर शरीर को रखता है, बोलता है मैं आत्मा हूँ, और एक शरीर से और एक शरीर चलता है, खेल खेलता है। अच्छा, और मन शांत हो गया तो जहाँ पूरा यूनिवर्सल में जो आत्मा है उसके साथ मिल गया तो हम बोलते हैं कि आत्मा गया, जाता मन है, और हम अपने गणित से बोलते हैं कि मन गया, सॉरी आत्मा गया। क्योंकि मन आत्मा का स्थान ले रहा है, बोल रहा है मैं ही आत्मा हूँ। अब आया। अब समझ में? ये मन आया कहाँ से? सृष्टि जब बनी तो ये मन कहाँ से आया? सृष्टि बनी, मन क्या है? शरीर कैसे आया? मन से ही शरीर आ रहा है। हाँ, मन क्या है? मन क्या है? विचार है। विचार नहीं तो मन नहीं है ना। आते होते जाते रहते हैं विचार, वही मन है ना। वो सब विचार अशाश्वत है ना। ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। जैसे लहरें जैसे आते जाते हैं, जब आते हैं दुनिया दिखाई देता है, नहीं जाते हैं दुनिया नहीं दिखाई देता है ना। सो आत्मा में ये लहरें आते हैं, जैसा समुद्र में लहरें आते हैं, जैसा आत्मा में लहरें आते हैं, उस लहरे को बोलते हैं मन। आते हैं, दिखाई देते हैं, जाते हैं, वो आत्मा का स्वभाव है, उसको बोलते हैं आत्मा का शक्ति। शिव और शक्ति, आत्मा है शिव और उसका शक्ति है दुनिया। आत्मा में दुनिया दिखाई देते हैं, गायब होता है, दिखाई देते हैं, गायब होता है। जैसे सगुण ब्रह्म। हाँ, उसको बोलते हैं शक्ति, शिव और शक्ति। जो दिखाई देता है वो भी आत्मा है, लेकिन आत्मा में वो दिखाई, आत्मा में ऐसे दिखाई देता है कि कुछ है, उसको बोलते हैं शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। वो दुनिया जो दिखाई दे रही है वो भी आत्मा है। जैसा आप सपने में एक बाग देखते हैं, सपने में एक कुआं देखते हैं, सपने में एक सर्प देखते हैं, सब मन ही होता है ना। इसी तरह जो जो देखते हैं हम, वो भी आत्मा भी होता है। आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। उसके बोलते हैं आत्मा का शक्ति। आत्मा की शक्ति कैसे दिखाई देता है? ये दुनिया जैसी दिखाई देता है। जो जो आप देख रहे हैं सब आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे होता है। अब मैंने चश्मा लगाया, ನಾನು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ? पीले रंग का चश्मा पहन लिया तो दुनिया सारी, हरा रंग का चश्मा पहन दिया तो दुनिया सारी हरा दिखाई देता है। लाल रंग का चश्मा पहन दिया तो लाल दिख रहे, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತದೆ। बताती आत्मा जब शरीर मन और बुद्धि पहनता है चश्मा जैसा, तब दुनिया दिखाई देता है। जब शरीर मन बुद्धि निकाल देता है तो आत्मा ही रहता है। दुनिया दिखाई देता है आत्मा में ही। आत्मा जब अपने आप को चश्मा पहन के देखता है तब दुनिया दिखाई देती है। समझ गए? इस चश्मे का नाम है शक्ति। ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಆತ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, और कोई नहीं है देखने के, क्योंकि आत्मा के बिना कुछ नहीं है। देखना किसको? चश्मा पहन के अपने आप को देखना है। अपने आप को जब देखा आत्मा ने चश्मा पहन के, तब दुनिया दिखाई देता है। इस चश्मे का नाम है मन बुद्धि शरीर। ये चश्मा है शक्ति आत्मा का। ಕೇಳ್ತುಕಮ್ಮ, ಆತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ। ಆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಯಾರು? ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ। ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? सो आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैं शरीर मन और बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुषमा जैसा चश्मा दिखाई दे रहा है तो ये शब्द ये क्या है? ये शरीर मन बुद्धि ध्यान के देखा तो दुनिया दिखाई देता है। शरीर मन बुद्धि निकाल दिया तो आत्मा ही रहता है।
दुनिया भी आत्मा ही है। ये चश्मा पहनने से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। जाने वाला आने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा तो ये चश्मा पहना है, दिखाई देता है। ये इस चश्मे को बोलते हैं शक्ति, उसके लिए बोलते हैं शिव और शक्ति। शक्ति के बिना शिव नहीं है। शिव भी, चश्मा भी और कुछ किसी से बना है, चश्मा भी शक्ति से, आत्मा से ही बना है। वो सब आत्मा ही है, इसको समझना ही मुक्ति। Any questions? Abhishek, any questions? So, ध्यान करने से आपको क्या होता है, आप मन बुद्धि और शरीर मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, इससे बैठते हैं। ज़्यादा आप बैठने से मन का खेल कम होता है। जब मन का खेल कम होता है साक्षी बनते हैं, बस इतना ही है। ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ನನಗಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತದೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಮುಕ್ತ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಧನ. ಮೈನಿಕಿಯ मैंने कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब सोचने लगा तो फंस गए, बंधन। साक्षी कुछ नहीं करता है, साक्षी सिर्फ देखता है, साक्षी नोड़ता है। तो आत्मा का स्वरूप आनंद है। साक्षी का आनंद का क्या 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 कब देखते हैं, जब आपको गाढ़ नींद आती है तब आनंद ही रहता है वहां पे। क्या हुआ, मन को क्या हुआ, मन शांत हो गया। तो शांत होने से रहता क्या है, वो आत्मा का आनंद रहता है। सो वो है आपका स्वरूप, आनंद स्वरूप। गाढ़ निद्ದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆಗಿರೋದು ಯಾರು, ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. नींद में चश्मा नहीं है, मन तो छोड़ दिया, शरीर नहीं है, तो हाउ खाई का हुआ, वही आत्मा है। इसी के लिए बोलते हैं मैं आनंद से सो गया। अभी बोलिए आप आत्मा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ? ಆಯ್ತು. ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆತ್ಮ. Actually, we think mind wants happiness, but when mind is not there, that is the real happiness. That's happiness. Mind becomes silent, there's happiness. That's happiness. But mind thinks again, I am happy. Ah. Mind says, I am happy. I am happy. Well, after sleeping, it says, no, I slept. I So, slept. it is nice. It takes whatever is sakshi, whatever is the nature of sakshi, takes overtakes. प्रश्न है कुछ? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ सुषमा जी? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? सही दिखाई देगा। ये शरीर आत्मा की वजह से चलता है ना? आत्मा नहीं दिखाई देता है। सच्ची बोलने वाला आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा मन को नहीं शक्ति नहीं। आत्मा तो यजमान है, जो आत्मा है उसको नहीं देखते हैं आप जो देखते हैं वो यजमान नहीं है, जो मैं नहीं हूँ। जो आपको देखते हैं मैं नहीं हूँ, जो आप देखते हैं वो शरीर है।
सो आप दुनिया में किस किस से बात मिलके बात कर रही है, मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, अब किससे बात कर रहे हैं आप? हाँ, ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನಾ ನಿಮಗೆ? ಕಾಣ್ತೇನಾ? ಏನು ಕಾಣ್ತೇನೆ? ದೇಹ, ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನಾ? ಆತ್ಮ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ದೇಹ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು? ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. सच्ची मैं हूँ आत्मा, आत्मा को देख नहीं सकते। सो आप किससे बात करते हैं? किसको मेरा पति बोलते हैं, किसको मेरा बच्चा बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, सो अभिषेक नींद आ रही है? क्या हो रहा है? स्टमक पेन हो रहा है। स्टमक पेन है? चाय जाए? दवाई ले ली। हाँ, दवाई I have लेंगे? taken a medicine. मेडिसिन? ये समझ गए आप? जब हम दुनिया में इंटरेक्शन करते हैं, सच्ची इंटरेक्शन चेतना से होना चाहिए, कॉन्शियसनेस से, और हम इंटरेक्ट करते हैं मैटर से और बोलते हैं माई कॉन्शियसनेस इंटरेक्ट किया। जस्ट जैसा एक कन्फ्यूजन है, मोबाइल फोन से बात करने से मोबाइल फोन जिंदा नहीं है, मोबाइल फोन के थ्रू मोबाइल फोन कोई बात कर रहा है। सो आत्मा से बात करते नहीं है हम, तो कंफ्यूज करते हैं कि ये शरीर से बात करके वो मैं इससे मिला, प्रभु जी से मिला। अरे प्रभु जी से कैसे मिला? पर दो आत्मा से थोड़ा बात कर रहे हैं हम, एक ही आत्मा है ना। हाँ, मैं प्रभु सर से मिला हूँ तो मैंने एक ही बात आत्मा। थोड़ा करी है किसी से। मैं तो अपने आप से मिलना तो कुछ होना होता है। है। साक्षात साक्षात्कार। हाँ, एंड्रे? सो उसको बोलते हैं दर्शन। हाँ, साक्षात्कार। जब आत्मा का कह देते हैं, हाँ, वही गुरु बनता है, वही शिष्य बनता है। हाँ। सो आप किससे बात करते हैं? नाम भी आप नहीं है। आपका नाम क्या है? ಏನ್ರಿ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದೇನ್ರಿ? ಹೆಸರೇನು? वो भी साक्षी करके हमने ही नाम दिया है ना। हाँ, साक्षी करके आपने ही नाम दिया। सो नाम नहीं है आपका, काम नहीं है, व्यवहार नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि मैं ये किया, वो किया, वो किया, क्या है? माया। ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜಕರೇಕ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ಹಾಡಿಂದ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ತನುವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅದೇ. क्या बोलेंगे प्रभु जी, किससे मिले? अगर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम आत्मा से मिले। आत्मा के बिना कुछ है क्या कहाँ पे? आत्मा से मिलने के बाद आप कहाँ रहेंगे बोलने के लिए? नहीं नहीं, जैसे किसी को मिलते हैं ना कि ये पति है, ये बच्चा है, तो अगर ये नहीं बोलेंगे कि ये पति है, ये मेरा बच्चा है, हाँ। और ये भी नहीं बोल सकते कि हम इतनी आत्माओं से मिले। सो जो आत्मा को समझता है उसको वो मुंह बंद करके बैठ जाता है, शांत रूप से बैठता है। जो भी आप बोलते हैं वो सब गलत है। मुंह खोल दिया तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि मुंह के थ्रू बोलने वाला कौन है? मन है। मन को सच्चाई बोलने नहीं आता है। सो जो आत्मा को देखता है वो मुनि बनता है, मौनी बनता है। क्या अभिषेक सिर हिला रहे हैं कि कुछ सच्चाई जान लिया आपने? मैं
ठीक है, मैं मेरा शरीर दिखाई दे रहा है आपको? मेरा शरीर कहाँ है? सामने बैठा है। मेरा शरीर कहाँ है? सोफा कहाँ है? रूम में, रूम कहाँ है? बैंगलोर में, बेंगलोर कहाँ है? इंडिया, इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड, वर्ल्ड कहाँ है? यूनिवर्स, यूनिवर्स कहाँ है? हाँ? सब ब्रह्मांड आपके मन में है। आपका मन कहाँ है? हाँ? ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में मन नहीं है, ब्रह्मांड मन के अंदर है। और वो कहाँ है? यहाँ पे है, सिर पे। याद आ गया आपको? हाँ? टेलीविजन सेट देखा है आपने टेलीविजन? हाँ? यार तुम कई बार मेडिटेशन के समय इधर देखती थी। हाँ? इतने सारे बढ़िया बढ़िया दुनिया इतने सारे छोटी टीवी में दिखाई देता है, इतना यहाँ पे। वो आपका शरीर भी उसके अंदर है, और फिर भी सोच रहे हैं आपके बाहर कुछ है। वो टीवी देखने वाला है साक्षी आत्मा। ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟಿವಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ। ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ 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 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲ ಸರ್, Class. ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಸರ್? ವಿಡಿಯೋ ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಟಿವಿ, ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹಾ video ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇಪ್ಪ, ಪ್ರಪಂಚ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ? ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಲೋಡ್ ಒಂದೊಂದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? हाँ? बताइए। इसको समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ समझे? ಇದು ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗುರುಜಿ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟಿವಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಟಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬೇಡ ಸಾಕು. सो और कुछ है? और कुछ जानना है आपको आत्मा के बारे में? हाँ? क्या जानना है? हेलो सुषमा जी, क्या जानना है? लाइट ओके, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पहले ओमकार बताए,